नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा के 253वें सत्र के पहले भाग में बेहतरीन कामकाज, करीब 100% रही उत्पादकता। धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा के साथ 3 अहम विधेयक हुए पारित। 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा भाग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पर राज्यसभा में हुई चर्चा का दिया जवाब। विपक्ष के तमाम आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है सरकार। लद्दाख को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में तथ्यहीन और भ्रामक खबरों पर रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा भारत ने चीन को नहीं दिया है कोई भी क्षेत्र, मतभेदों को हल करने का काम जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को बताया सेना का अपमान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है, चाहे वो गरीब हो या फिर उद्यमी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पर 60 गांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है। In spite of the various steps, obviously seen steps taken for helping the poor and needy of this country, a false narrative is created to accuse, saying, oh, this government works only for cronies. I just want to come up with some details before I get into some of the details in the budget to say, houses completed under PM Awas Yojana, sir, more than 1.67 crore houses have been completed. Is that for the rich? Households which have been electrified under Saubhagya since 2017 October is more than 2.67 crores. Is that for the rich? Total value of orders placed on government e-marketplace is 8,22,077 crore, which is more than 8 trillion of rupees. Are they being given to big companies? They are being given to MSMEs. So we have helped out small and medium companies to ensure themselves getting a market. Is that for the rich and the big capitalists? वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लगातार विस्तार हो रहा है और इसका लाभ गांव में रहने वाले लोगों को हो रहा है। Length of the road sanctioned under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is, and that is strictly between 2014-15 and those years, 2,11,192 kilometers. Those roads go to villages. Are they villages only for the rich, or are they villages where people who belong to the lower sections of the society also live? Are they villages where Garib don't live? So, whose lifeline are these roads? So, unthinkingly just keep throwing allegations saying, oh, this is for crony capitalists, this government is working only for the rich. Please answer these questions. वित्त मंत्री ने कहा कि लाखों किसान ई-नाम से जुड़ रहे हैं, जिसका फायदा छोटे और मझोले किसानों को होगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगस्त 2016 से जनवरी 2020 तक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन की संख्या 3,60,000 करोड़ से अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। ये सब गरीबों के लिए था, ना कि किसी और के लिए। Number of farmers registered on e-NAM, sir, approximately 1.69. e-NAM was thanks entirely due to the Prime Minister's effort to make sure that the farmers are connected all over the country and he's not constricted by the local markets. If he has opportunities better anywhere else, he should have it. Are these farmers
rich corporate farmers? No, not at all. They are the small farmers. Number of digital transactions served via UPI from August 2016 till January 2020. More than 3.6 lakh crores UPI is used by who? The rich? The corporate? No, not at all. The middle class, the smaller traders, all of them use UPI. So who are these people then? Is this government creating UPI, facilitating digital transactions to benefit some rich cronies, some damads? Not at all. It is helping only the poor. वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 के बजट में गरीब, दलित, आदिवासी और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। This government's efforts with credible proof of who the beneficiaries are, which are the major schemes, and therefore when the budgetary provisions are made, it is made for the poor, Dalits, tribals, and the students who need desperately all the benefits. And therefore, if you want to speak out, Ujjwala Yojana benefited how many women? And we've extended it to 1 more crore women for whom that Ujjwala will be delivered. और इससे पहले उच्च सदन में आज आम बजट 2021-22 पर चर्चा को वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे बढ़ाया और अपना भाषण पूरा किया। उन्होंने कहा कि ये बजट नए, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की उम्मीद को दर्शाता है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में किसानों और गरीबों की अनदेखी के आरोप लगाए। हालांकि सत्तापक्ष की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा गया कि बजट गरीबों को समर्पित है और इसमें हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। बजट में आशा दिखती है एक नए भारत की, सशक्त भारत की, आत्मनिर्भर भारत की। मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, लेकिन उसके बावजूद ना पेट्रोल डीजल के किसी के दाम नहीं बढ़ेंगे। बड़े बड़े बुद्धि अर्थशास्त्री पिछली सरकार में थे। मैं खुली चुनौती देता हूं, वो कोई एक व्यक्ति आकर कहे कि कैसे सेस लगाने से दाम बढ़ सकता है। दूसरे सदन में जाएं, इस सदन में कहें, आप लोग कह दो मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा। Whereas while allocating 900 crore for the newly created Agricultural Infrastructure Fund for 2021, there has been a cut of 1,700 crores on the interest subsidy scheme for the farm loans. So the defense mention needs to be mentioned, sir. It has dipped from 1.3 lakh crores in budget estimates. Currently, it has been decreased by 70,775 crores to 13.4%. प्राइवेट सेक्टर में पहले रिजर्वेशन लाए, जिससे 25% आबादी लगभग 80% की, 52% आबादी ओबीसी की, जो आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस आरक्षण को आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे पहले यूपीए की सरकार रही हो या वर्तमान में एनडीए की सरकार जब आई है, तब इन्होंने निजीकरण को फायदा पहुंचाने का काम किया है। राज्यसभा से हुए संशोधनों के साथ महापत्तन प्राधिकरण विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। इसके साथ ही यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता देने वाला महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 10 फरवरी को राज्यसभा से कुछ संशोधनों के साथ पारित हुआ था। इससे पहले लोकसभा से यह विधेयक बीते मानसून सत्र से 23 सितंबर 2020 को पारित हुआ था। विधेयक के कानून बनने से निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ काम करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। लोकसभा से मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। इसके जरिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर अब अदालत बिना शर्त रोक लगा सकेगी। ताजा संशोधन के अनुसार अगर कोई फैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के जरिए हुए करार के आधार पर दिया जाता है तो अदालत फैसले पर स्थगन के लिए कोई शर्त नहीं लगाएगी और अपील लंबित रहने तक बिना शर्त स्थगन रखेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के अगले नेता प्रतिपक्ष होंगे। मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल सोमवार को खत्म हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। वे 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के 17वें नेता प्रतिपक्ष होंगे। और इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान सदन में बजट पर चर्चा के दौरान किया। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा से वो काफी दुखी हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक सदस्यों में से एक त्रिवेदी यूपीए सरकार में रेल मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पद संभाल चुके हैं। जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें? और उनके पास किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या? राज्यसभा में बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी माननीय सांसदों को उनकी संसदीय पारी के लिए शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्रों में भारतीय सेना की वापसी को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही तथ्यहीन और भ्रामक खबरों को खारिज करते हुए एक बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए समझौते में भारत ने अपने किसी भी इलाके को नहीं छोड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया। मंत्रालय ने यह कहा है कि सरकार को अपनी सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। सेना का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन को जमीन देने के बयान के बाद आया। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान को सेना का अपमान बताया है। और देश का पहला सीएनजी चालित ट्रैक्टर लॉन्च हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली में इसे लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जनरल वीके सिंह और कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सीएनजी किट मेक इन इंडिया के तहत बनाने की तैयारी है और कृषि में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों को भी बायो सीएनजी में कन्वर्ट करने की योजना है। सीएनजी ट्रैक्टर से प्रदूषण कम होगा, खर्च डीजल के मुकाबले कम आएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सीएनजी ट्रैक्टर के लिए मानक तय कर दिए हैं। इसी मानक के अनुसार ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध होंगे। इससे खेती पर आने वाले खर्च को भी कम किया जा सकेगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक साथ चुनाव होंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह जानकारी दी। 2 दिन के पुदुचेरी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में कराने का आग्रह किया है। इस साल अप्रैल मई में पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। With an interaction with the political parties, it was a sustained interaction. 10 political parties stroke entities met us, and the meeting lasted for a good 1.5 to 2 hours. After that, we had a meeting with their deputy commissioners, or what we call collectors in DMs. सुप्रीम कोर्ट ने झूठी खबरों के जरिए नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों और सामग्री के साथ ही फर्जी खातों के जरिए भेजे जाने वाले भड़काऊ संदेशों के नियमन के लिए तंत्र बनाए जाने की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र और ट्विटर इंडिया से जवाब मांगा है।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने केंद्र और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह कहा गया है कि जानी मानी हस्तियों के नाम पर सैकड़ों फर्जी ट्विटर खाते और फेसबुक खाते हैं। याचिका में यह मांग की गई है सोशल नेटवर्किंग साइट पर नफरत फैलाने वाली सामग्री के नियमन के लिए तंत्र स्थापित किया जाए। पीठ ने कहा कि वो मामले में नोटिस जारी कर रही है और अन्य लंबित मामलों के साथ इस याचिका को जोड़ रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इन फर्जी खातों का इस्तेमाल किया जाता है जो देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का अभियान चौथे दिन भी जारी है और अब तक 36 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 168 लोग अब भी लापता हैं। और इसी बीच धौलीगंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बचाव कार्य को समय समय पर रोकना पड़ रहा है। वहीं रैणी गांव के ऊपर झील के निर्माण की जानकारी मिलने के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम को रेकी के लिए भेजा गया है। देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है। देश भर में अब तक 77.66 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक 58.9% यानी कि 58,65,000 से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है, जबकि 21.2% यानी कि 19 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों में 70% से ज्यादा टारगेटेड लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 8 राज्यों में 40% से कम वैक्सीनेशन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,61,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। भारत में सक्रिय मामलों में तेजी से गिरावट जारी है। गुरुवार को दैनिक सक्रिय मामले 9,300 से के करीब रहे हैं, जबकि दैनिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 15,858 रही। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 1,36,000 से नीचे चली गई है। गुरुवार को 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो 97.32% के साथ ही वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रिकवरी में से एक है। अब तक कुल 1,05,79,000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। भारत के औद्योगिक उत्पादन में दिसंबर में 1% की वृद्धि हुई है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 1.6% बढ़ा है। खनन उत्पादन में 4.8% की गिरावट आई है, जबकि बिजली उत्पादन में दिसंबर 2020 में 5.1% की वृद्धि हुई। पिछले साल मार्च में कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित रहा था। नए साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में आम लोगों को खुदरा महंगाई से काफी राहत मिली है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने खुदरा मुद्रास्फीति 4.06% पर रह गई। इन आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में गिरावट से मुख्य रूप से महंगाई में राहत मिली। दिसंबर 2020 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर 4.59% पर रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में खाद्य वस्तु की मुद्रास्फीति 1.89% रही। यह आंकड़ा दिसंबर के 3.41% के मुकाबले जनवरी में काफी नीचे आ गया। और तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि तमिलनाडु के विरुधुनगर में जानमाल का नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर संवेदना जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि स्थानीय आपदा प्रबंधन और प्रशासन घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की ओर से ट्वीट कर आग में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है।
राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 13 फरवरी से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से होगी। मुगल गार्डन के अलावा आगंतुकों को राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में भी जाने की अनुमति दी जाएगी। दर्शकों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। दर्शकों का प्रवेश और निकास सिर्फ राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। इसके अलावा लोगों को अपने साथ पानी की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता और खाद्य सामग्री भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।